it's the final stages of this election, and we have come to a Narendra Modi rally in Champaran in the north of Bihar to try to understand the impact of the dramatic shift in the Prime Minister's rhetoric. Starting off from an easy win for the BJP on the back of the Prime Minister's claim of Vikas, development and turning India into a Vishwa Guru. विकसित भारत विकास भारत को विकसित बनाना है. To now, increasingly, where in every speech he is warning of the dire consequences of the opposition coming to power, and to this end, spreading a barrage of Islamophobic half-truths and falsehoods, which have become, in a sense, the defining feature of his campaign. मंगलसूत्र घुसपैठियों को दिया जाएगा, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है. मुस्लिम लीग की छाप है. तुम्हारे पास बे भैंस हो तो एक भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपी दो, एक तुम्हारा छोकरा ना पानी. सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे. This scaremongering has set the terms for the rest of the ruling party's campaign, from social media posts to hate speeches. आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? माँ, माटी और मानुस का नारा मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गया. So, we're here to understand how these claims and these accusations are being received. They've of course been condemned by some sections of the media, they've been debunked. But how do the BJP's core base, how does the Modi faithful receive this? Because in some quarters it's being seen as a sign of panic. Is that why the BJP or the Prime Minister is playing the communal card, or is it actually helping shore up his base? And more importantly, what does it mean for Mr. Modi's own legacy in his attempts to craft a statesman-like image? Mandate 2024. Claim versus reality with Srinivasan Jain. Crowds stream into a Maidan in Motihari in East Champaran. The numbers aren't surprising. Motihari is a BJP stronghold. The party has won the seat the past 3 times. Behind the numbers, the BJP's well-funded election machine, bussing in crowds from villages across the district. बस का किसने किया इंतजाम? भाजपा के? आपने? अच्छा. ये बस का इंतजाम किसने किया? पार्टी. भाजपा ने? हम लोग किया है. भाजपा ने किया. क्या उम्मीद रखते हैं मोदी जी से, क्या भाषण में सुनना चाहेंगे? अरे क्या सुना, वो तो पूरे सुनाएंगे ही, पूरे विकास की बात करेंगे. 400 पार तो जाना ही है. 400 पार की बात है. आप मोदी जी को सुनने आए हैं जी. क्या मुद्दा, क्या चीजों पे आप उनको सुनना चाहेंगे, क्या बात करेंगे? विकास के मुद्दा, वो हर जगह विकास के है. हर स्टेट में इनको विकास का मुद्दा चल रहा है. Vikas found only a passing mention in the 30-minute speech. इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है. There was vitriol in plenty, some of the kind we've heard from the PM over the last decade, like using the baseless smear Tukde Tukde gang to describe the opposition barely 4 minutes into the speech. 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा. ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर. ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर. ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर. Then there were the divisive fictions that have defined this campaign. इस वोट बैंक को खुश करने के लिए SC, ST
ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर आपसे छीन करके वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। संविधान कभी इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए ये संविधान बदलना चाहते हैं। साथियों, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 10 साल में करीब 700 Bihar, the venue of the speech and ruled by a BJP-JDU government, is among 14 states that has granted reservation to Muslims on socio-economic grounds, as has BJP-ruled Gujarat. Moreover, the vote jihadist comment comes days after the PM claimed in an interview that he does not target Muslims. Recall the PM in another interview claiming he doesn't play politics over the Ram Mandir? Well, this was him, roughly 20 minutes into the speech. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, बोलो जय श्री राम। The loudest cheers, though, were reserved for the occasions when the PM talked up his record as a defender of the poor. अस्पताल के बिल की चिंता मत करो मां, तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में बैठा है। और मैंने तय किया है कि गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा, और इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है, देता रहेगा। The enthusiasm understandable. Bihar, for all the halting progress of the past decade, is ranked as India's poorest state. But beyond food grains and toilets, what is the PM's vision for the future of opportunities for its aspiring young? On that, there was nothing. No mention even of the BJP's own election promises that routinely feature on front pages. Instead, towards the end, the PM struck an angry defensive note on job creation, his government's weak spot. And the centerpiece of the campaign of Tejasvi Yadav, his main rival in Bihar. बताओ बेरोजगार भाई, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, खेती के लिए रिसर्च सेंटर बना है, सरदार पटेल सहकारी प्रशिक्षण संस्थान बना है, सिलेंडर का प्लांट लगा है, इफ्को बाजार बने हैं, ये सब कुछ क्या आपने आप चल रहे हैं क्या? इनमें रोजगार नहीं मिला क्या? या इतना बड़ा डेयरी प्लांट बना है, इससे हजारों पशुपालकों को, माता और बहनों की आय बढ़ी है, इसमें किसी को रोजगार नहीं मिला है क्या? फिर एक बार, अब की बार 4 जून, भाइयों और बहनों, Our slogan is back clearly. So what do the faithful make of the PM's speech? तो अगर 400 पार हो रही है तो मोदी जी ऐसे हर बार जाके क्यों बोल रहे हैं कि अगर विपक्ष आ जाएगी तो आरक्षण मुसलमानों को दे देगी, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी दिया जा रहा है वोटर को, अभी सबसे ज्यादा नहीं तो मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष आ रही है? नहीं, अगर आप जीत रहे हैं तो मोदी जी का सवाल है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ठीक है? मोदी जी का जो है टारगेट सबका साथ सबका विकास हो भी रहा है। आप देखिए 10 साल में कहां से कहां चल गया। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है, एक छीन के एक मुसलमान को दे देंगे, अगर महिलाओं का मंगलसूत्र है वो मुसलमान को दे देंगे। वो कह रहे हैं कि अगर सपा कांग्रेस आएगी तो वो राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। राम मंदिर नहीं चलेगा जब। अरे ये एक सेकंड, ये मोदी जी बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं।
मोदी जी बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास का, तो ये बातें क्यों कर रहे हैं फिर? भ्रमित कर रहे हैं ना वोटर को। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं कि हम मंदिर पे प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये आस्था का मुद्दा है, तो फिर वो क्यों उठा रहे हैं मंच से? प्रचार नहीं हो गया? बनाया तब ना उठा रहे बात। पूरे भारत में सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका आंसर नहीं है। हाँ बताइए। मोदी जी ने बोला कि हमारे आने से राम मंदिर बना, जय श्री राम का नारा लगाया, तो अगर वो कह रहे हैं कि ये आस्था का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो उस पर प्रचार क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने नहीं कर रहे हो, नहीं वो दिखा रहे हैं ना। बोलने दीजिए। मोदी जी बोले राहुल गांधी के लिए कि जो न्योता मिला था जो भी हुआ वो प्रचार ही तो हुआ, वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार भी होगा, मोदी जी को बोला है प्रचार भी होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या अच्छा लगा मोदी जी के भाषण में? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। क्या खास अच्छा लगा जो उन्होंने बोला? मोदी जी सर गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब के लिए अच्छा कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना हो, पीएम किसान हो, बहुत सारी योजना है, गरीब के भगवान है, गरीबों के मसीहा है सर। अगर गरीबी नहीं है तो मुफ्त का राशन क्यों बांट रहे हैं फिर? सभी लोग क्या अच्छा लगा मोदी जी के भाषण में आपको? देखिए, मोदी जी इतने बड़े लोकप्रिय नेता हैं कि जो हम लोग का तो उम्र 70 साल है, लेकिन हम लोग जो अभी 10 बरस में देखा है वो पिछले 60 साल में हम लोग नहीं देखा। जैसे क्या नहीं देखा? जैसे कि देश मजबूत हुआ है ना, सबसे पहले मान सम्मान भारत का बढ़ा है। कैसे मजबूत हुआ है? अमेरिका का सबसे बड़ा समाचार पत्र है न्यूयॉर्क टाइम्स जी, उसने लिखा कि आज तक इस देश के या विदेश में भी कोई ऐसा नेता पैदा नहीं लिया जो यह कमिटमेंट करे कि हम देश की अर्थव्यवस्था 5 से 3 पर लाएंगे। आज तक कमिटमेंट कोई नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स से कहाँ देखा आपने? हमने पढ़ा है, वॉइस ऑफ अमेरिका में हमने सुना है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसा आर्टिकल आया है? आर्टिकल आया है, आप सर्च लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं देखा है। आप सर्च लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। समझे कि नहीं? Some at the Modi rally admit jobs are a concern, but say it won't impact their voting choices. नौकरी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नौकरी की दिक्कत है। दिक्कत है, लेकिन मोदी जी से हम यही कहना चाहेंगे हाँ। कि यहाँ पे जो आ रहे हैं तो जनता पे ध्यान दें और नौकरी की व्यवस्था करें, नौकरी दे कम से कम। सरकार बनने के बाद 15-20 लाख नौकरी पूरे भारत में दे। तो नौकरी की अच्छी पार्टी भी यही बोल रही है कि हम 15 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अगर नौकरी नहीं है, दिक्कत है, तो फिर भाजपा मतलब आप सरकार को क्यों वोट देंगे? सरकार को तो फिर देना चाहिए था नौकरी। जी जी, भाजपा देगा नौकरी, भाजपा नौकरी देगा। रुकावट के लिए खेद है। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट की ओर से एक छोटा सा संदेशा है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ये आपका सब्सक्रिप्शन है जो हमें ऐसे वीडियोस और रिपोर्ट्स लाने में सक्षम बनाता है। रिसर्च, शूट, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कैमरा, साउंड, दोस्तों इन सब में काफ़ी खर्च होता है और हम ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता की असली कीमत क्या है। तो आज ही न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट को सब्सक्राइब करें। www.newslaundry.com/subscription पर जाएं और हमें सहयोग दें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। Elsewhere in the district, though, away from the rally, discontent simmers amongst BJP supporters. तो पिछली बार आप लोग भी मोदी को ही दिए थे? हाँ, मोदी को दिए थे। आप भी दिए थे? लेकिन अब नहीं। अब नहीं देंगे? नहीं, उनका बाजार खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या, क्यों? नहीं, अब नहीं चाहिए। बिहार में तेजस्वी चाहिए, वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। क्या वजह? कोई वजह तो होगी। रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मेरे कार्यकाल में बड़ा विकास हो गया है, रोड हो गया है, राशन हो गया है, गैस का दाम देखिए, सिलेंडर बांटे हैं, घर बांटे हैं। 1200 रुपया गैस का दाम होगा, पहले कितना में मिलता था, आज 1200 में गैस मिल रहा है। तो पिछली बार तो भाजपा की लहर थी, मोदी लहर थी। बिल्कुल, अपनी बार ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है? अच्छा, आप पिछली बार दिए थे? हम पिछली बार दिए थे, मोदी को दिए थे। अच्छा, इस बार क्या हो गया? क्या नहीं हुआ, जैसे कि बहुत सा मुद्दा है लोगों के सामने, किसान के सामने हो चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ स्थानीय मुद्दा लोगों को है जो हमको बदलना है, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इस हिसाब से। In these voices, perhaps a clue as to why the PM may have cranked up the communal rhetoric. Here, though, there are no takers. तो मोदी जी जो अपने भाषणों में इतनी चीजें कह रहे हैं कि अगर आप विपक्ष को देंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस आपसे छीन लेंगे, ये सब चीजें आप मानते हैं? वो तो ऐसे
उच्च स्तरीय लोग मानते होंगे, लेकिन हम लोग तो नहीं मानते। आप इन चीजों को नहीं मानते? नहीं मानते। अच्छा, कि आरक्षण छीन के मुसलमान को दे देंगे, ये सब ऐसा कैसे हो जाएगा? आरक्षण संविधान के तहत है तो कैसे छीन लेंगे वो? ये तो मेरा संविधान सम्मत चीज है ना, हमें आप कैसे छीन लीजिएगा? कोई नहीं छीन लेगा मेरा। तो मंदिर की जब बात करते हैं उससे आपको कोई वो नहीं होता है, वो पॉजिटिव में नहीं है? चली गई मंदिर के नाम पे, कितना माने लोगों को बेवकूफ बनाइएगा। भगवान राम आ गए, सब लोग पूज रहा है, उनको पूजा कर रहा है सब लोग। भगवान राम आ गए, सब लोग पूजा कर रहा है, सब आप भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। रोजगार और विकास के नाम पर वोट मांगिए। 2014 से हिंदू नहीं ना है, पहले रोजगार और विकास पे वोट। क्या बोल रहे हैं? 2014 से हिंदू नहीं है, पहले से हिंदू है यहाँ। आप पहले से राम के पूजा करते हैं, हम देखिए हिंदू है, यहाँ देखिए सब लोग हिंदू है। हमारा वंशज पूजा करते हैं और हम लोग भी करेंगे। 2014 से नहीं हिंदू हैं? हिंदू कब से हैं आप? पहले से है, कौन जमाना से कितना जमाना से है। बड़ी बात कही आपने। राम को लाए, हम उनको लाएंगे। पक्षपात वाला गाना निकाल दिए। तो राम को लाए हैं तो जाइए अयोध्या में, जाइए पूजा पाठ करवाइए। This is Sanjay Bhai, who drove us to Motihari and back. सर मैंने 10 साल तो मोदी जी को ही समर्थन दिया था। पहले बात तो हिंदुत्व पे दिए, हिंदू थे। हाँ। और इन लोगों ने माइंड वॉश किया, पब्लिक का माइंड वॉश किया, जय श्री राम करके। और पब्लिक है कि अब सबको समझ में आ रहा है। अच्छा। और धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि अभी भी हिंदुत्व पे, राम मंदिर पे प्रचार तो हो रहा है। सर राम मंदिर बनने से सिर्फ 2 ही को फायदा है, एक पंडित को, एक भिखारी को। तीसरे को कोई फायदा नहीं है। तीसरा तो जाएगा दर्शन करने, तो पैसा खर्च करके ही आएगा, कमा के थोड़ी ना आएगा। नहीं, तो ये आप बताइए कि आप फिर भाजपा मोदी जी से ऊब क्यों गए? नहीं, आप कह रहे हैं कि कोरोना के बाद आपका बिजनेस, आपका तो गाड़ी चलाने का है। हाँ सर, उस पे असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है सर। गिरा बिजनेस बहुत। अच्छा। पहले फुर्सत नहीं मिला करता था सर, और आज के दिन है कि मतलब 6-6, 5-5 दिन बैठे भी रह जाते हैं। और दूसरी बात सर, आज का टाइम ऐसा है सर कि मतलब सर पूरे महीने कमाते हैं, पूरे महीने कमाते हैं, पता चलता है कि महीने में 20-25 हजार रुपए कमाए जी। और स्कूल का फीस देना है सर 8,000 9,000, रूम रेंट है सर मिला जुला के सर सब कुछ बराबर हो जाता है। फिर अगले महीने मतलब कुछ सेविंग नहीं बचता है। अच्छा, तो आप अभी भी मोदी समर्थक हैं? नहीं सर, अब कभी जिंदगी में नहीं मोदी जी को वोट दूंगा। कौन है विकल्प? विकल्प में एक से एक नेता है, इंडिया गठबंधन का एक से एक नेता है। राहुल गांधी क्या कम है? राहुल गांधी का तो सबको माइंड वॉश कर दिया गया ना कि पप्पू है। ये लोगों पप्पू का टाइटल दे दिया उनको, माइंड वॉश कर दिया। आखिरी सवाल, आपने बार ये शब्द यूज किया, माइंड वॉश। हाँ सर। कैसे किया माइंड वॉश आपका? माइंड वॉश हिंदू को लेके। अच्छा। हिंदुत्व के लेके कि मतलब हिंदू हो तो हिंदू को ही वोट करो। Mind wash. Too strong a term to describe Modi supporters? Consider this exchange from the Prime Minister's rally. विकास हो या ना हो, मोदी जी का जरूरी है। विकास हो या ना मोदी जी चाहिए तो चाहिए, विकास हो या ना हो। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.